अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, not your regular probability tree diagram sort of question. Okay, so and this is from May June 2016, paper 1, variant 11. ठीक है ना? Oh, sorry, paper 1, variant 1, मतलब paper 11. Okay, so it says here, box 1 contains 2 white balls, box 2 contains 4 white balls, and 3 black balls. So, yeah. And chooses at random 1 ball from each box. Find the probability that these balls are both black. Okay, so put some thought into it and tell me कि क्या chances हैं दोनों के black आने के. What do you think? 0. Why? Why do you think that is? Because box 1 does not have black Yeah. balls. So this is going to be a no-brainer. इसका आंसर होगा सीधा सीधा 0. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि box 1 में तो कोई black है ही नहीं. ठीक है, अगर बहुत वाइट कहता तो चलो हम फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन बहुत ब्लैक का तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज बॉक्स 1 में तो है ही वाइट. ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सीधा सीधा 0 है. अच्छा, then it says find the probability that these balls have different colors. Okay, so remember, you're drawing one from each box, huh? You're gonna find out the probability that these balls have different colors. So मुझे बताओ, in how many ways can that happen? 2 ways. Okay, बताओ क्या है वो 2 ways? No, I think only 1 way. Yes, exactly, only 1 way, not 2 ways. ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताओ कि why were you thinking 2 ways and now why are you thinking 1 way? First I thought कि box 1 में से भी black और white दोनों आ सकते हैं, लेकिन then I Yes. realized कि black नहीं है. Yeah, exactly. ठीक है, so this is what you thought कि पहली दफ़ा में box 1 में से black, ठीक है, और 2 में से white, and 1 में से white and 2 में से black. But then we realized कि box 1 में तो black है ही नहीं. ठीक है, so that means this can only happen one way, which is box 1 में से white और box 2 में से black. अच्छा, अब मुझे बताओ box 1 में से white आने की क्या probability है? 1. Yeah, it's going to be 2 upon 2, which is equal to 1. So yeah, I mean there's a 100% chance कि box 1 में से जो ball आएगी वो white आएगी. ठीक है, अब मुझे बताओ कि box 2 में से black आने की क्या probability है? 1 upon 2. अच्छा, आपने डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके भी 1 upon 2 नहीं होगा, 3/7. 3/7 होगा. 2/7. 3/7. ठीक है, it's always best to simplify, leave the simplification part for the later stages. ठीक है, वरना फिर गड़बड़ होने के चांसेस हो जाएंगे. So 3/7 is your answer. ठीक है, I think यहाँ तक तो आसान है. अच्छा, part B. Part B says from the original contents of box. ये वाला part समझ नहीं आया. कौन सा वाला part? ये part. A part 2. Yes sir. ठीक है, देखो, A part 2 says कि box 1 find the probability that these balls have different colors. So remember, event क्या है? Event ये है कि Anne जो है she is choosing one at random one ball from each box. ठीक है, और हम चाहते हैं कि दोनों boxes में से जो balls हैं वो different colors की हैं. ठीक है, that's what we want and that is of which the probability we have to find. ठीक है, so अब ये आपका box 1 आ गया. I'll just write 1 here and 2 here. अब मुझे बताओ, एक तरीका तो ये हो सकता है कि बॉक्स 1 में से ब्लैक आ जाए और 2 में से वाइट आ जाए, तो दोनों क्या हो जाएंगे? डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे. ठीक है, और क्या हो सकता है? और ये भी हो सकता है कि भाई बॉक्स 1 में से वाइट आ जाए और बॉक्स 2 में से ब्लैक आ जाए, तब भी क्या होंगे? तब भी दोनों डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे. अच्छा, लेकिन ये करने के बाद हमें एक चीज़ का एहसास होता है, और वो क्या चीज़ होता है? कि 1 में black नहीं. Exactly, 1 में तो ब्लैक है ही नहीं. ठीक है, so what are we gonna do? We're just gonna cross it out. सही है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम इसको कंसिडर करेंगे, सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे कि बॉक्स 1 में वाइट आए, जिसके क्या चांसेस हैं? 2/2, क्योंकि उसमें है वाइट कितनी? 2, और टोटल कितनी है? टोटल भी 2 है. और बॉक्स 2 में से आए ब्लैक, जिसके क्या चांसेस हैं? ज़रा बताएं मुझे. 3.7. There you go, 3/7. Work this out. तो ये आ गया आपका क्या? ये आ जाएगा आपका 3/7 and that is your final answer. ठीक है, क्योंकि 2/2 ने कैंसिल हो जाना है, इससे इसको just 1 into 3/7 is 3/7. अब क्लियर हो गया? ओके, सो हियर कम्स पार्ट बी. अभी ना आपका जो सवाल है ना, आपने बड़े सही टाइम पे ये सवाल पूछा. आपको इसके पार्ट सी में भी ना, एक सेकंड में ज़रा एसी बंद कर दूँ, कोल्ड. या हाँ, सो इसको पार्ट सी में ना आपको ये अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ अनदर क्वेश्चन.
Okay, so part B says from the original contents of box 2, इसको हम B कह लेते हैं, ठीक है. B chooses at random 2 balls without replacement. Find the probability that these balls are both white. अच्छा, original contents का मतलब कि जो original amount था black और white का, उसी में से वो choose करे, और हमने बताना है कि इस box में से what is the probability of getting कितना, I think both white है, हाँ, 2 balls which are white without replacement. Okay, so ये तो बड़ा simple सा है. मुझे बताओ कि क्या करेंगे इसमें आप. पहले probability 4.7 4.7 is the probability of getting white in the first attempt, ठीक है. फिर दोबारा white आने की probability क्या होगी अगर हम कोई चीज़ avoid कर लेते हैं. 3.6 So 3.6, so let's work this out. 4.7 into 3.6, no need a calculator for that. 3 1s are, 3 2s are, 2 1s are, 2 2s are, so there you go, 2.7, ठीक है. Any questions so far? No, sir. Yeah. Okay. अब पार्ट सी पे आते हैं. पार्ट सी कह रहा है कि ठहरो, पार्ट सी के लिए इसको ज़रा इसके नीचे रखते हैं. Carla chooses one of the boxes at random with the original box contents. Again, इसका मतलब कि जो शुरू में था सवाल के शुरू में वही अभी भी है. Not that कि जैसे हम पार्ट बी में 2 वाइट निकाल चुके हैं or anything like that. None of that has happened when we're doing part C. With the original box contents, she then chooses at random one ball from this box. Find the probability that the ball is white. Okay. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले वो randomly एक box choose करेगी, ठीक है. So that means हमें उसकी भी probability consider करनी पड़ेगी. कैसे consider करेंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन पहले वो randomly एक box choose करेगी, ठीक है. I mean, think of it this way कि कार्ला जो है she is blindfolded, okay, and she has 2 boxes in front of her, एक box 1 and 2, ठीक है. तो फिर हमने तो बताना है कि जी बॉक्स 1 चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है और उसमें से वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और फिर बॉक्स 2 चूज़ करके उसमें से वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. क्यों? क्योंकि सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ वाइट, ठीक है. सो सवाल को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन से बॉक्स में से आ रही है, ठीक है, 1 में से आ रही है, 2 में से आ रही है. द क्वेश्चन डजंट केयर अबाउट दैट, इट जस्ट वांट्स यू टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ वाइट. अच्छा, एक तरह से थोड़ा सा तो इसका आंसर मैं दे ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे ये बताएं कि what are the possible ways through which this condition right here can be fulfilled. Box 1 and then the probability of taking white, and then box 2 Yes. and then box 2. वो box 1 चूज़ करे और उसमें से white आ जाए, और वो box 2 चूज़ करे और फिर उसमें से white आ जाए, ठीक है. सर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई बॉक्स 1 इंटू द प्रॉबिलिटी ऑफ वाइट करेंगे, बॉक्स 1 की प्रॉबिलिटी इंटू द प्रॉबिलिटी ऑफ वाइट. लेकिन जब मल्टीपल वेज होते हैं फुलफिलिंग द सेम कंडीशन, सो उनकी तो प्रॉबिलिटीज़ ऐड की जाती हैं, उनकी प्रॉबिलिटीज़ मल्टीप्लाई नहीं की जाती. जैसे फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन सेज के 1 इज़ ब्लू एंड द अदर इज़ रेड, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लू रेड कंसिडर करते हैं, और रेड ब्लू भी तो हो सकता है. रेड ब्लू कंसिडर करके फिर दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ. मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अभी आपने ऐड किया दोनों को, लाइक प्लस साइन लगाया, ऊपर हमने लाइक पार्ट बी में मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई कब करते हैं और ऐड कब करते हैं. देखो मुझे ये बताओ, अभी आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा. हियर द क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल्स आर बोथ वाइट. मुझे ये बताओ इन हाउ मेनी वेज कैन दैट हैपन दैट बोथ ऑफ देम आर वाइट. 2 ways. What are those 2 ways? Like पहली दफ़ा में first वाइट और दूसरी फर्स्ट दफ़ा बार वाइट. और दूसरी बार लेकिन देखो सेम बॉक्स. इसको हम 1 वे कहेंगे, क्योंकि जब वो 2 बॉल्स पिक करती है वो मिला के एक इवेंट बनता है, ठीक है. हियर द क्वेश्चन सेज देखो कि B chooses at random 2 balls without replacement, ठीक है. So that means white into white is one way that she can choose 2 balls without replacement, ठीक है. Black into black is another way she can choose 2 balls without replacement, ठीक है. अच्छा, अब let's take a step back. हम आते हैं इस पे, part 2 पे आते हैं, where the question said find the probability that these balls have different colors. Okay. Now मैंने इसमें आपसे एक सवाल ये इनिशियली पूछा था कि in how many ways can this happen, ठीक है. So initially you said कि black white and white black.
So these are two different ways in which you can end up with you can fulfill this condition, that is that these balls have different colors. अब वो बाद में हमने देखा कि हाँ ब्लैक वाइट तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये एक तरीका था कि पहली दफ़ा में ब्लैक और दूसरी दफ़ा में वाइट, और दूसरा तरीका क्या था कि पहली दफ़ा में वाइट और दूसरी दफ़ा में ब्लैक. ठीक है, तो व्हेन यू पिक टू बॉल्स दैट टुगेदर इज वन वे. Okay. ठीक है, अब यहाँ पे Two क्या है? balls from the same box. you या mean. टू बॉल्स फ्रॉम सेम बॉक्स. यस. Okay. अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे देखो हमारा जो पूरा इवेंट है वो कंप्लीट कब होगा. यहाँ पे हमारा इवेंट कंप्लीट जब होगा व्हेन कार्लो चूजेस वन बॉक्स एट रैंडम एंड देन शी चूजेस वन बॉल. ठीक है, सो दैट वुड बी वन वे ऑफ कंप्लीटिंग द इवेंट. अब जैसे यहाँ पे हमने ये देखना है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट. सो B1 वाइट, इसका मतलब कि ये एक तरीका है जिससे शी कैन चूज वन बैग एट रैंडम या वन बॉक्स एट रैंडम एंड देन ड्रॉ अ बॉल एट रैंडम. What could be another way? Another way could be that she could choose box 2 and then draw a white ball from the same box at random. ठीक है, तो ये मिला के आपका वन वे होगा और ये मिला के आपका अनदर वे होगा. Get it? Yes. Okay. जैसे अगर आपने आई डोंट नो कौन सी क्लास में मैंने कहा था, मैंने आपसे कहा था कि लेट्स से कॉलेज में एडमिशन की कंडीशन ये है कि ठहरो जस्ट पुट माय लैपटॉप ऑन चार्ज. मैंने कहा था कि एक कॉलेज में एडमिशन की कंडीशन ये है कि आपका मैथ में नहीं, बल्कि इनफैक्ट लेट्स से यू आर अपेयरिंग फॉर यू गिविंग द एग्ज़ाम ऑफ टू सब्जेक्ट्स मैथ एंड इंग्लिश, और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उसमें एडमिशन का कंडीशन ये है, क्राइटेरिया ये है कि आपका एक ए होना चाहिए और एक बी होना चाहिए. ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड आउट कि हाउ मेनी वेज कैन यू सिक्योर योर एडमिशन, तो अब मुझे बताओ आप क्या जवाब देंगे. Two ways. अब वो दो वेज मुझे एलैबोरेट करके बताओ. पहले मैथ्स में A आए और इंग्लिश में B and then इंग्लिश में A and then मैथ्स में B. एग्जैक्टली. ठीक है, सो हम ये नहीं कहेंगे कि मैथ में इज़ वन वे एंड इंग्लिश में बी इज़ अनदर वे. मैथ और इंग्लिश मिला के वन वे बनेगा. ठीक है, और फिर वही चीज़ हम मैथ में इंग्लिश में भी, द अदर वे कुड बी कि मैथ में भी इंग्लिश में है. ठीक है, And then add them, right? एंड देन यस, एंड देन उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड करेंगे. Okay. ठीक है, सो व्हेनेवर देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ फुलफिलिंग द सेम कंडीशन you find the probability of each and every condition and you add it. Thank you. You're welcome. अच्छा, ओके, अब हम ज़रा इसकी कैलकुलेशंस करते हैं. अब मुझे ये बताएं आप, ठीक है, नाउ पुट योर सेल्फ इन कार्लोस शूज़. लेट्स से यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, आपके सामने दो बॉक्सेस पड़े हैं, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2. क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप बॉक्स 1 चूज़ करेंगे? 1/2. सिंपल, 1/2. क्यों? क्योंकि बॉक्स 1 एक है, ठीक है, एक ही बॉक्स है, इस पर 1 लिखा हुआ है, और टोटल बॉक्सेस कितने हैं? टोटल बॉक्सेस हैं आपके पास 2. सो दैट मीन्स इन हाउ मेनी वेज कैन यू पिक बॉक्स 1 इज़ 1/2. अच्छा, अब आपने बॉक्स 1 तो चलो चूज़ कर लिया. अब मुझे बताओ बॉक्स 1 में से वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/2. 2/2. वेरी गुड, सही है. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग बॉक्स 2? 1/2. 1/2. वेरी गुड. और उसमें से वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/7. इसमें से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 4/7. दैट्स इट. ठीक है, लेट्स वर्क दिस आउट. तो हो जाएगा आपका 1/2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1s और 2 2s और प्लस 2/7. एलसीएम होगा हमारा 14 टाइम्स 7, सो दैट्स 7 प्लस टाइम्स 2 4. So what do you get? 7 plus 4 is 11. 11/14 is your final answer. There you go. अब as always have a good look at what I've done. इसको ज़रा absorb कर लें आप और मुझे बताएं if there is something you still don't understand.